good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Parikari, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. But before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from Play Store. I'm teaching the science class 10 and we are reading chapter 2, that is acids, bases and salt, and this is the final part. This is going to be conclusion part. Okay, we have already read the first three parts. This is the fourth part. Today we'll be wrapping this chapter. All right. Okay. So so what we'll be reading today? Today we'll be reading what is strength and what is concentration, the basic difference between strength and concentration. Next is strong or weak acids and bases. Third is strong or weak acids and examples. And strong or weak bases examples, neutralization and salts. Okay. So today we are going to cover 6 topics. Okay. So without wasting any further time, let's get started. The first topic that today we are going to cover is strength versus concentration. Now, many people even think that strength and concentration in acid, bases and salt chapter are the same. But it's not like that. The actually meaning of strength and concentration differs in this chapter. Okay? So what is strength? Strength refers to the ability of the acid or the base to dissociate in solution. Now, what is dissociate? Dissociate, you can actually break the word in order to get the meaning. Disassociate. Okay, so in order to break the ions present in the solution. Now acid, as you know, you can give me an example of acid. Okay, like HCl, and base, magnesium hydroxide, MgOH whole 2. So acid has H plus ions in it, and magnesium hydroxide has MgOH OH minus ions in it. So the strength is defined in which there is dissociation. The ions get separate. The tendency at which the ions of the particular acid or the base separates, it is known as strength. ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ से जो मतलब एबिलिटी रहेगा H प्लस या फिर OH माइनस एसिड या बेस रेस्पेक्टिवली में आयंस को सेपरेट, यानी डिसोसिएट का मतलब क्या है, सेपरेट कर देना, आयंस को अलग कर देना. ठीक है, तो उस जिस स्ट्रेंथ से वो मतलब जिस पर्टिकुलर टेंडेंसी से वो H प्लस या OH माइनस आयंस जो अलग होंगे एक दूसरे से, उसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन. गॉट इट? गुड. नाउ pH measures this dissociation refers to the ability of an ionic compound to break apart into ions. ठीक है, तो pH यहाँ पे क्या आता है, हमने पढ़ा है pH क्या होता है, दैट इज pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जितना ज़्यादा H प्लस उतना ज़्यादा एसिडिक सोल्यूशन. यानी कि हमें कहाँ से पता चलता है कि ये ज़्यादा एसिडिक है, अगर ज़्यादा H प्लस है इसका मतलब ज़्यादा एसिडिक है. तो यहाँ पे pH का मेजर कैसे होता है, वही डिसोसिएशन ऑफ द आयन से होता है, H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से. ठीक है, तो ये कैसे होगा, दैट इज द स्ट्रेंथ. ओके. Concentration at the same time refers to the amount of acid or base dissolved in the solution. ठीक है, concentration मतलब एक particular solution आपने MgOH2 का बना दिया, तो उससे पता चलेगा कि यहाँ पे concentration मतलब कितना ज़्यादा base है, यहाँ पे कितना अमाउंट, कितना टेंडेंसी है, उससे पता चलेगा, मतलब कितना OH माइनस है वहाँ पे, और एसिड में H प्लस कितना है, तो दैट इज कॉन्सेंट्रेशन. वेयर एज स्ट्रेंथ refers to the ability to break those ions into various parts. Okay, got the difference? Strength is different and concentration is different. Concentration कितना ज़्यादा एसिड या बेस है, और स्ट्रेंथ जो होता है दैट इज तोड़ने में कितना एनर्जी लग रही है, तोड़ने में क्या टेंडेंसी है आयंस को. ठीक है, सो डोंट थिंक दैट बोथ आर सेम, बोथ आर डिफरेंट. ओके. An acid or base will have the same pH regardless of how concentrated it is, because just because you add water to dilute it, it's still going to have the same amount of H plus ions. They will just be spread out more. ठीक है, इसका क्या मतलब है बताओ, कोई मेरे को बता सकता है? एक एसिड या बेस का सेम pH होगा. ठीक है, एसिड या बेस का तब सेम pH होगा कब, जब हम वहाँ पे वाटर डाल देंगे. सपोज HCl है, HCl में मैंने पानी डाल दिया, तो HCl में मैंने पानी डाल दिया, तो सपोज द HCl वाज एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड. ओके,
सो वहाँ पे जब मैंने वाटर ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। उसके आयन जो होते हैं बहुत ज़्यादा आयन था। अगर मैंने सपोज 5 मिलीलीटर का HCl लिया था, उसमें मैंने 10 मिलीलीटर वाटर ऐड कर दिया, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे जो हो गया आपका सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया। और जितने आयंस 5 में थे, अब 15 में जब मैंने पानी डाल दिया उसमें 10, 15 हो गया टोटल। तो जब 15 ml मैंने देखा HCl सोल्यूशन वो डाइल्यूट हो गया, तो जितना आयंस 5 में था 15 में क्या होगा, वो पूरा अलग अलग हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा। तो स्प्रेड हो जाने पे क्या होगा, उसका जो पावर वो डिक्रीज हो जाता है। आयंस का पावर अब जब ऐड कर देते हो वाटर एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में, तो डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि उसके जो आयंस होते हैं वो एकदम स्प्रेड हो जाते हैं, हर जगह फैल जाते हैं। ठीक है, और इसका पावर जो होता है डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, पर हाँ उसका पीएच वही रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर तुमने पानी डाल दिया एक एसिडिक सोल्यूशन में, HCl में मैंने पानी डाल दिया तो वो सीधा बेस हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आयंस जो होते हैं उनका पावर, आयंस की डिग्री जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम इट pH remains constant. Okay, there is no change in the pH. Got it? Okay, good. Next. Now what is this? Strong or weak acids and bases. Okay, तो एसिड्स का कुछ नाम बताओ। HCl हो सकता है, ठीक है, HNO3 हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एवरी एसिड। ओके, देन स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। डिजॉल्व इन वाटर, nearly all the acid or base molecules will dissociate into ions. ठीक है, तो जब भी कोई भी एसिड, सपोज HCl आप कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे कि मैंने बताया 5 ml का अभी कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हो, उसमें 10 ml वाटर डाल देते हो, तो क्या होगा, तो वही जो पर्टिकुलर आयंस थे 5 ml के अंदर वो डिसोसिएट हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे, और कॉन्सेंट्रेटेड जो था वो अब डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है, दैट इज नियरली ऑल ऑफ द एसिड और बेस मॉलिक्यूल्स विल डिसोसिएट इनटू आयंस। तो जो भी मॉलिक्यूल्स थे वो एकदम सेपरेट हो जाएंगे और आयंस बन जाएगा। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में दिख रहा है, दैट दे हैव टेकन हाइड्रोनियम आयंस और क्लोराइड आयंस वो अलग हो गए हैं। ठीक है, तो देखो प्लस अलग, प्लस जो है वो हाइड्रोनियम आयंस है और आपका क्लोराइड जो है दैट इज माइनस। ओके, तो यही स्ट्रॉन्ग एसिड जब मैंने वाटर डाल दिया उसमें, तो क्या हो गया, ये जो आयंस थे उनके अंदर, वो पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर वो सेपरेट होंगे टू दैट ऑफ प्लस एंड माइनस। ओके, नेक्स्ट, वो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में आया। ठीक है, दे गॉट सेपरेटेड। नाउ the greater the ability to dissociate, the more potential the acid or base has for being dangerous because there are more ions available to react. Now एक strong acid या फिर एक strong base क्यों dangerous होता है, वो इसीलिए डेंजरस होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं। ठीक है, समझ लो, एक कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसमें वाटर डाल दो तो इट डज नॉट मैटर, उसका पीएच सेम रहेगा, प्लस डाइल्यूट ज़रूर हो जाएगा वो थोड़ा सा, बट वो स्टिल डेंजरस होगा। उसका रीज़न ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ आयंस प्रेजेंट है। ओके, जो कि स्ट्रॉन्ग है, एसिड ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो इट इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ H प्लस और Cl माइनस अवेलेबल इन इट। Get it? The first example you can see. Second is when a weak acid or weak base dissolves in water, only a small fraction of the acid or base molecules dissociate, partially dissolve होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप एक वीक बेस ले रहे हो या वीक एसिड ले रहे हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब बहुत वीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जब वाटर में आप डिजोल्व करते हो तो इसमें ज़्यादा आपको कोई डेंजरस नहीं लगेगा। ठीक है, ये डेंजरस नहीं होता बिकॉज उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो होता है वीक होता है, वहाँ पे कम ही आयंस अवेलेबल होते हैं, तो उसको वाटर में डालने से ऑफ कोर्स बहुत कम आयंस रिलीज होंगे, राइट। सो इट इज़ नॉट दैट डेंजरस फर्स्ट, बट फॉर द बट as compared to that, the strong acid or bases are extremely dangerous. Okay, with less ions in the solution, there is less potential for danger because there are less ions available to react. बिल्कुल सही। तो एक वीक बेस या वीक एसिड में क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी कम आयंस होते हैं, वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत वीक होता है, दैट्स वाई उसका वो ज़्यादा आयंस ही रिलीज नहीं करेगा, सो इट्स नॉट डेंजरस। ओके, so this is the basic difference between a strong acid strong base and weak acid weak base. Okay, तो अगर strong acid strong base में अगर आप water डालते हो तो it's very dangerous even if अगर, क्योंकि उसका dissociation power बहुत high होता है and large number of ions are released, but
एज कम्पेयर टू द अदर साइड, द वीक एसिड और वीक बेस, यू कैन नो, वहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी कम आयंस होते हैं, तो डिसोसिएशन में और कम रिलीज होता है, सो दैट इज पोटेंशियलिटी ऑफ द डेंजरस बार डिक्रीजेस. ठीक है. Okay. Now, what are the examples of strong acids or weak acids? The strong acids का example है देखो, HCl, that is hydrochloric acid. Can you tell me where you find hydrochloric acid? You find hydrochloric acid in your stomach. ठीक है, हमारे स्टमक में जो भी एसिड्स रिलीज होते हैं, यू बेटर नो दैट. तो वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl. ओके, ऑल्सो नोन एज स्टमक एसिड. डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हमारे स्टमक में रिलीज होता है तो क्या होता है, तो हमें एसिडिटी हो जाता है. एंड टू न्यूट्रलाइज इट वी टेक बेसिस लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना. आप इनो लेते हो या फिर डाइजिन लेते हो, क्या है वो बेस है, इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज इन योर स्टमक. नेक्स्ट इज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ मिलता है, बैटरी जो होती है, बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है. ठीक है, दैट्स वाई देखना, कोई भी बैटरी बहुत टाइम तक अनयूज रहेगा या फिर बहुत टाइम तक आप ऐसे ही रख दोगे उसको, तो वहाँ से एसिड निकलता है. दैट एसिड इज नथिंग बट सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, सो द बैटरीज दैट वी यूज, आइदर रिमोट का बैटरी हो या कोई भी पर्टिकुलर बैटरी हो, तो उसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड. नाउ नाइट्रिक एसिड. ओके, यू फाइंड इवन नाइट्रिक एसिड भी हमें मिलता है, HNO3 इन द एनवायरमेंट. ओके, नाइट्रिक एसिड इज इवन बहुत सारे, मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, लैब में नाइट्रिक एसिड्स आर बीइंग synthesis for various purposes. Okay, next is weak acid. Now what are weak acids? Weak acids is vinegar acid, जो एसिटिक एसिड भी उसका नाम है. ठीक है, वीक एसिड कौन है, विनेगर है. जो भी विनेगर हम डालते हैं, अचार में डालते हैं या फिर सॉस में डलता है, या फिर डिफरेंट, आप जब कोई भी दूध फट जाता है तो उसमें विनेगर ज़्यादा डालते हो तो प्रॉपर कडलिंग हो जाए, तो विनेगर इज यूज. एंड व्हाट इज विनेगर, इट इज़ अ वीक एसिड ऑल्सो नोन एज acetic acid. Its name is vinegars का दूसरा नाम है acetic acid. Now what is citrus, like C6H8O7 है, citrus fruits है. ठीक है, citrus fruit आपका जो भी है, जैसे कि आपका नींबू हो गया, मौसम्बी हो गया, ऑरेंज हो गया. So what are this? These are citrus fruit. And what is consists, कौन सा acid इसमें, citric acid. As you have already read different types of acids, I have taught you, right? So these are some of the examples of strong acids and weak acids. Strong acid है hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, and weak is acetic acid, citric acid. Okay, got it? Okay, very good. Next. नाउ व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस का एग्जाम्पल. ठीक है, अब हमने एसिड देख लिया, अब हम बेस देखेंगे. ओके, सो व्हाट आर बेसिस नाउ, स्ट्रॉन्ग बेसिस. स्ट्रॉन्ग बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एनी एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल विच OH. ठीक है, तो ये सब जो OH वाला जहाँ पे भी लगता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि, सो ये सब क्या है, आपका बेसिस है, OH माइनस लगा है मतलब बेस है. ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब साफ सफाई में हेल्प यूज होता है. तो ये सब जो बेसिकली होता है, मतलब काफ़ी सारा सोडियम, बहुत सारी जगह यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो these are very strong bases, वहाँ पे आयनिक पावर बहुत ज़्यादा रहता है. But at the same time you can see weak bases like aluminium hydroxide often found in deodorants. ठीक है, aluminium hydroxide deodorants पे भी होता है. magnesium hydroxide होता है, you can find in the case of that your neutralization में help करता है, like आपका जो भी क्या बोलते हैं, एंटासिड्स में होता है. नेक्स्ट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड साफ सफाई में काम आता है, आपका क्लीनिंग रिएजेंट की तरह यूज होता है. ठीक है, सो दीज आर द बेसिस विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ. We are actually incorporated with these bases in various ways. Okay, and so you get to know कि अगर strong है तो ज़्यादा ions होगा, weak है तो कम है. Okay, this is the only concept, and remember the examples either of that of your strong acid or weak base or strong base or weak acid. ठीक है, तो सबके examples at least दो दो याद रखो, और वहाँ पे use होता है वो भी याद रखो. वो याद नहीं रखने से भी just remember that two examples each of the sections, which is very essential in your examination point of view because it is asked. Okay, next, the last thing that I'm this is not the last, salt है ना. तो neutralization, this is again neutralization. Now as the name suggests, can you tell me what is neutralization? Neutralization,
न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, दो चीज़ें मिलती होंगी, कुछ नया होता होगा। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बताओ? डू एनीबडी नो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? Okay, we have salts then. Okay, neutralization is a chemical reaction between an acid and a base that takes place in a water solution. Okay, so neutralization क्या है, एक chemical reaction है एक acid और एक base के बीच में, ठीक है, that takes place in a water solution. For example, अगर आप acid का, acid में H plus है और base में OH minus है, ठीक है, तो मैं अगर एसिड को बेस में मिलाऊंगी तो दोनों आयंस क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे, H2। HCl और OH माइनस का कोई भी, जैसे HNO3 अगर आप मिलाते हो तो ये क्या होता है, नाइट्रस वाला पार्ट अलग हो जाएगा और यहाँ का जो एसिड का H प्लस और बेस का जो OH माइनस आएगा वो वाटर बन जाएगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बोथ द ions of the acid and the base associate together and get separated, ठीक है। तो अगर आप एक एसिड और एक बेस के बीच में रिएक्ट करवा रहे हो तो उसके आयंस एसोसिएट हो जाएंगे और बाकी कंपाउंड अलग हो जाएगा, ठीक है। When acids and bases react, the H plus ions from the acid react with the OH minus ions from the base to form H2O, that is water, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप HCl ले रहे हो और HNO3 ले रहे हो तो नाइट्रस पार्ट अलग हो जाएगा और एसिड का जो H प्लस पार्ट है और बेस का जो OH माइनस पार्ट है वो मिलके HOH बनाएंगे, दैट इज वाटर, यानी वाटर अलग हो जाएगा। सो वेन एवर यू आर रिएक्टिंग एसिड विद दैट एन एसिड विद दैट ऑफ अ बेस, देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन occurs and the water gets separated. Okay, got it? The overall pH becomes neutral. तो कभी भी अगर एसिड को बेस से रिएक्ट करवा रहे हो तो बेसिकली न्यूट्रल हो जाता है रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन, इसीलिए यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन टर्म को यूज किया गया, दैट इज nearly a 7 pH you get. Okay, so here simply it means that whenever you react an acid with that of a base, then a neutralization reaction occurs in which water is produced and the ions of both acid and bases associate together to form H2, that is water. Okay, many people that suffer from heartburn will take antacids to ease their symptoms. How do you think antacids work? Now अभी बहुत टाइम आपने देखा होगा एसिडिटी हो जाती है स्टमक में, एसिडिटी होती क्यों है? The only reason why acidity happens is because of your HCl production in the stomach. Okay, HCl एक लेवल पे प्रोड्यूस होती है, जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तब क्या होता है, हार्ट बर्न होता है, ठीक है ना, कैसे कैसे जलन सी महसूस होती है। सो इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज इट व्हाट वी टेक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी रेड। सो इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द स्टमक एक और दैट इज हार्ट बर्न, वी टेक एंटासिड्स। ओके, सो यहाँ पे हाउ टू यू थिंक एंटासिड्स वर्क? तो एंटासिड्स क्या करता है, एंटासिड्स लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज एन एंटासिड, राइट, वो क्या है, बेस है, तो जब वो रिएक्ट करता है विद दैट ऑफ द HCl, व्हाट हैपेंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसी से हमारा हार्ट बर्न रिड्यूस हो जाता है। The stomach is acidic due to the HCl and antacid are basic. A neutralization occurs when we take antacid like magnesium hydroxide. Got it? Pretty clear? है ना, क्लियर हो गया ना? Okay, next. The last one is salt. Now, what is salt? The ions that are left behind after H plus and OH minus ions form water combine to form salt. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि H प्लस और OH माइनस जब मिलते हैं, हम दो एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाता है वाटर, राइट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। उसके बाद भी अगर कोई आयंस अगर बच जाता है H प्लस और OH माइनस तो वो क्या बनता है, सॉल्ट। Okay, a salt is a compound that forms when the negative ions from the acid combine with the positive ions of the base. तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर बनने के बाद भी अगर कुछ कंपाउंड, कुछ आयंस एसिड और बेस के बच जाते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट, ठीक है। कौन सा आयंस कहाँ से जाता है, H प्लस आयन फ्रॉम एसिड एंड OH माइनस फ्रॉम बेस। ओके, एसिड प्लस बेस गिव राइज टू वाटर प्लस सॉल्ट। तो ये जो एसिड है जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, यानी HCl प्लस HNO3 गिव राइज टू दैट ऑफ योर वाटर और जो भी पर्टिकुलर आपका कंपाउंड, एंड दैट कंपाउंड इज सेड टू बी सॉल्ट। ओके, एंड हियर व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन occurs, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके,
फॉर एग्जाम्पल HCl एंड KOH मिला, यानी कि यहाँ से HCl H प्लस आप देख पा रहे हो एसिड है एक्वायस में, और KOH यहाँ पे K प्लस और OH माइनस है, बेस है, एंड व्हेन दे रिएक्ट दे फॉर्म H2 दैट इज वाटर बाय दैट ऑफ H प्लस और यहाँ का OH माइनस, और यहाँ पे KCl अलग मिल जाएगा, एंड दैट पर्टिकुलर KCl इज नोन एज सॉल्ट। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर बच गया है कंपाउंड उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट। तो कभी भी कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, यानी कि एसिड और बेस ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये जो H प्लस आयन और OH माइनस एसिड और बेस रिस्पेक्टिवली का कंबाइन करके वाटर बनेगा, और जो पर्टिकुलर कंपाउंड बच जाता है जैसे कि KCl ये सॉल्ट हो गया, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन occurs बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस to give rise to water and a salt. Okay, all right. What type of reaction is neutralization reaction? It is a double displacement reaction. देख रहे हो यहाँ पे K और Cl दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है, H OH के साथ जाके बैठ रहा है और KCl, यानी दो दो जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, changes हो रही है पोजीशन, that's why it is a double displacement reaction, neutralization reaction. Whenever we combine an acid with a base, it gives rise to water and salt. Now name the salt produced in this neutral like potassium chloride. ठीक है, यहाँ पे क्या salt produce हुआ है, potassium chloride produce हुआ है, along with that of water. Got it? Okay. So what we read today? We read about the types of strong acid जब react करता है water के साथ ions release होता है, strong base का भी वही है, वैसे ही weak base का क्या होता है, या weak acid का ज़्यादा ions release नहीं होता, so potentiality of dangerous level उसका डिक्रीज रहती है, कम रहती है। ठीक है, उसके अलावा भी रेड एग्जाम्पल्स लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड्स, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, एंड वीक एसिड का साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेस में वैसे ही आ जाएगा आपका कोई भी हाइड्रोक्साइड KOH, ओके, एंड द अदर साइड यू कैन सी वीक बेसिस क्या है बताओ, वीक बेसिस बहुत सारा हमने पढ़ा है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, दोज आर वीक बेसिस. Next, after that, neutralization reaction. It is very important topic. Okay, neutralization reaction is a reaction in which an acid reacts with a base to give rise to water and salt. Okay, so H plus from that of acid and OH minus from that of base give rise to क्या देता है, OH माइनस और H प्लस कंबाइन करके वाटर हो जाते हैं, और जो बचा हुआ है वो सॉल्ट बन जाता है. ओके, and the salt and this particular neutralization reaction उनका pH basically 7 होता है, that's why it is known as neutralization. जब acid और base मिलता है तो neutral हो जाता है pH. Okay, formation of water and salt happens. Okay, and this is a type of double displacement reaction क्योंकि दोनों ही जो particular compounds है उसमें exchange हो रहा है. ठीक है, so got it. So this is the final conclusion part of this particular chapter. I hope you really like this chapter. This was the second chapter of acid. This is the second chapter of class 10th. Okay, the first and second is over now. And if you have any doubt regarding this chapter or any of the chapters, let me know in the comment section below. I'll definitely answer. And if you enjoyed the session, do like, share, and subscribe. Until then, I'll see you in the new class with a new chapter. Till then, have a good day and bye.